جو لا کا احترام کرے گا، قانون کا احترام کرے گا، مجھے نہیں لگتا کہ اس کے اوپر پیسے لگے گا. کیوں پچھلے دنوں یہاں پہ سیلاب نے تباہی کی، کئی لوگوں کے مکان اڑ گئے، کئی لوگوں کے دکانیں ختم ہو گئی، کئی لوگوں کی زمینیں ختم ہو گئی، فصلیں ختم ہو گئی، طرح طرح کی مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اس وقت ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پہ ہم سب آپ کے بیچ میں بیٹھے ہیں اور ایک ذمہ دار طریقے سے ہم بیٹھے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر ایڈمنسٹریشن یا کوئی محکمہ کسی بھی طریقے سے کہیں بھی لاپرواہی کرے گا تو ہم قانون کے تھرو ان کو سوال پوچھیں گے، جواب پوچھیں گے، اور انشاءاللہ ہم ڈی سی صاحب کو دعوت دیں گے. جگہ جگہ ہم کیمپ کروائیں گے، جگہ جگہ ان کو آنا پڑے گا اور لوگوں کے مسئلے مسائل جو حل کرنے ہوں گے جب تک ایم ایل اے یا کوئی ایسا ریپرزینٹیٹو پبلک کے بیچ میں آئے گا. السلام علیکم و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں جے کے ارلی نیوز اور میں آپ کا ساتھی اکرم ملک. آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ بارشوں کے دوران کتنا زیادہ نقصان ہوا اور خطۂ چناب میں کتنی سڑکیں بہہ گئی. یہاں تک کہ جو فصلیں تھیں، عام لوگوں کی جو فصلیں تھیں، فصلوں کا بھی کافی زیادہ نقصان ہوا، بہت زیادہ پریشانیاں آئی. تو اسی مدعے کو لے کر آج ہم بات کریں گے. مشتاق صاحب ملک جو ڈی پی اے پی کے ذمہ دار ہیں اور اس خطۂ چناب کے اچھے معزز شخصیت ہے، ان سے بات کریں گے کہ یہ جو نقصان ہوا، نقصان کی کتنی بھرپائی ہوئی. اور حالیہ جو آپ نے دیکھا کہ ڈوڈا سے جو ممبر اسمبلی تھے ان کو ڈیٹین کر کے اریسٹ کیا گیا. آگے انویسٹیگیشن کیا ہوگی کیا نہیں ہوگی وہ الگ بات ہے، مگر فی الحال ان کی غیر موجودگی میں کام کیسے ہو رہے ہیں اور کہاں تک ہو رہے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے سر؟ ایم ایل اے ڈوڈا مہراج ملک کی کو جو اریسٹ کیا گیا ان کی غیر موجودگی میں ان کی کانسٹیٹوئنسی کے کیا حالات ہیں، کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے، جہاں تک ایم ایل اے صاحب کا تعلق ہے تو ایک ایم ایل اے لوگوں کا چنا ہوا ہوتا ہے، وہ ایک ذمہ دار ہوتا ہے، پبلک ریپرزینٹیٹو ہوتا ہے. بدقسمتی سے جو سین بنا وہ سب لوگوں کو پتا ہے، اور آپ کو بھی پتا ہے، سب کو پتا ہے، پوری ایڈمنسٹریشن کو پتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں اس پوری سین کو ایک بہت بڑی بدقسمتی. اب سوال یہ ہے کہ جن لوگوں نے بڑے پیار سے، محبت سے الیکشن میں حصہ لیا تھا، تمام پارٹیز نے اپنے اپنے کینڈیڈیٹ میدان میں اتاری تھے، اور قدرتی بات ہے کہ ہر پارٹی تو جیت نہیں سکتی ہے، کسی ایک پارٹی کو جیت حاصل ہوتی ہے. اس میں سے ہمارا ایم ایل اے مہراج الدین ملک صاحب تھے. لیکن پچھلے دنوں ان کے اوپر جو گورنمنٹ کی طرف سے پی ایس سی لگایا گیا اور ان کو اس وقت جیل میں بند رکھا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں اس وقت عوام جو ہے بہت پریشان ہے. گراس روٹ پہ جو کام ہونے تھے، مجھے لگتا ہے کہ اس ایک مہینے میں جو یہاں پہ یہ سینئر رہا تو لوگ ڈسٹرب ہیں، ایڈمنسٹریشن بھی بیزی رہے، لوگ بھی اس وقت پریشان حال ہے. تو آج میں آپ کی وسادت سے اب ڈی سی صاحب کو یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھی اب ذمہ داری ہے وہ سیدھا سیدھا ایڈمنسٹریشن کے اوپر ہے ہماری، اور ہماری کانسٹیچوئنسی بنجا ڈوڈا بنجا جو ہے، اس کی تمام تر ذمہ داریاں جو اس وقت ہیں وہ ڈی سی صاحب کو ہیں. اور ڈی سی صاحب کی جتنی بھی ایڈمنسٹریشن یہ گراس روٹ پر ہے، ہر محکمہ کے لوگوں کو اس وقت ہم ذمہ دار ٹھہراتے ہیں. تو میری گزارش رہے گی ڈی سی صاحب سے کہ آپ ہر علاقے میں اور ہر گاؤں میں پرسنلی انٹرسٹ لے کے ایم ایل اے والا کام بھی اور خود بھی آپ ایک اچھے اور کام کرنے والے آفیسر ہیں، آپ کو زیادہ دھیان دینا ہوگا ہماری کانسٹیچوئنسی کے اوپر، تاکہ لوگوں کو اس وقت جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جو پچھلے دنوں یہاں پہ سیلاب نے تباہی کی، کئی لوگوں کے مکان اڑ گئے، کئی لوگوں کے دکانیں ختم ہو گئی، کئی لوگوں کی زمینیں ختم ہو گئی، فصلیں ختم ہو گئی، طرح طرح کی مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس وقت ہماری کانسٹیچوئنسی کے لوگوں کو. تو میں ڈی سی صاحب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ پرسنلی انٹرسٹ لے کے آپ ہر گاؤں میں اور ہر پنچایت میں ایک ٹیم بھیجی جائے. جو آپ نے ٹیم بھیجی پچھلے دنوں یہاں پہ ایچ ڈی ایم صاحب یا تحصیلدار صاحب، لیکن ہم اس پہ مطمئن نہیں ہیں کیونکہ ہر جگہ وہ پہنچ نہیں پائے. کہیں پہ پٹواری صاحب بھی نہیں پہنچ پایا. علاقہ بھی بڑا ہے، ہم سمجھتے ہیں ان کو کام بھی بڑا تھا، لیکن کافی لوگ ابھی اس امید میں ہیں کہ آج نہیں کل سرکار کی طرف سے، محکمہ کی طرف سے یہاں پہ لوگ آئیں گے. لیکن اس وقت تک ابھی کوئی فائنلائز رپورٹ نہیں بنی ہے اور ہر جگہ نہیں پہنچ پائی ہے. اس لیے میری گزارش رہے گی کہ آپ پورا انٹرسٹ لے کے ہر جگہ پہ اس وقت آپ زمینوں کا معائنہ کیجئے. فروٹ لوگوں کو ختم ہو گیا یہاں پہ، جو بھی جگہ جگہ سلائڈیں آئی اس سے لوگ بڑے پریشان ہیں. دوسری بات، سڑکوں کی جو حالت ہے وہ خستہ ہے. کہیں سڑکوں کی جو تباہی ہے، پورا روڈ ختم ہو چکا ہے، ابھی تک کوئی بھی سڑک مکمل نہیں ہوا ہے ابھی تک. بالکل میں اسی پہ بات کر رہا تھا کہ جہاں جہاں بھی اس وقت ہر گاؤں میں
सड़कों का जाल बिछा हुआ है, लेकिन जहां भी स्लाइड हुई पिछले बारिशों में, वो स्लाइडें अभी कंप्लीट नहीं हुई। उस पर बिल्कुल ही कहीं सिंगल रोड बनाया गया है ताकि थोड़ा आमदोरफ्त हो जाए, लेकिन जो स्लाइडें साइडों पे हैं जिसपे एक्सीडेंट होने का खतरा होता है, जिसपे बहुत रिस्क है लोगों को चलना, इसलिए गुजारिश रहेगी हमारी डीसी साहब से कि आप स्पेशल ऑर्डर निकालें हमारे स्पेशल सब डिवीजन गुंदों के लिए, आप ठाठरी के लिए और पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी की मैं बात कर रहा हूं कि आप हंगामी तौर पे इनको हदायत दें कि जहां जहां भी रोड है इनको कुशादा किया जाए। और उसके बाद लोगों को इस वक्त, अभी सितंबर और अक्टूबर का महीना चल रहा है, सेक्रेटरीट में जो मार्च आता है उसके नजदीक यहाँ पे जो फंडिंग रिलीज होती है जिसमें खास करके लोगों को कंपनसेशन होता है, उस कंपनसेशन का भी लिए आपने ध्यान देना होगा। उसके बाद यहाँ पर मनरेगा पेमेंट जो लोगों को बंद है, मैं स्पेशली गुजारिश करना चाहता हूँ डीसी साहब को कि आप, डीसी साहब भी आप हैं ही, लेकिन आपको एमएलए का काम भी करना है, लिहाजा गुजारिश रहेगी, बिल्कुल हम्बली रिक्वेस्ट पब्लिक की तरफ से कि आप मनरेगा पेमेंट जो लोगों की बंद है, जहां मटेरियल का पैसा बंद है, जिन लोगों को पीएमएवाई में किस्तें बंद हैं, इन तमाम का जायजा लेकर जल्द अज जल्द इन लोगों का पैसा जो रिलीज करवाया जाए। इसी तरीके से आप हॉस्पिटल की हालत देखिए, एजुकेशन की हालत देखिए, महकमा बिजली की हालत देखिए, तो कौन सा महकमा है जहां हम ये बोलेंगे कि सब कुछ ठीक चल रहा है। अब डीसी साहब को मैं समझता हूं कि बहुत जिम्मेदारी से काम लेना होगा हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी का, तो मैं फिर गुजारिश करता हूं। इस वक्त जो नुकसान है वो फसलों का बहुत ज्यादा नुकसान है, जिसमें फल फ्रूट भी तबाह हुए हैं, और जो फसलें जिनको आने वाले वक्त में लोगों ने उसको क्लोज करके उसे कुछ पैसा वसूल करना था वो खत्म हो चुकी है। वो बिल्कुल अंडरस्टूड बात है। आप देख लीजिए कि सैलाब ने पूरी रियासत के अंदर, पंजाब के अंदर, उत्तराखंड के अंदर, हिमाचल के अंदर क्या तबाही मचाई, और उसी तरीके से हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा में और हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में और हमारे सब इलाकों में बिल्कुल नुकसान हुआ है, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। वो भी सरकार को देखना चाहिए। तो मैं उम्मीद रखूंगा कि हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अब पूरी जिम्मेदारी से काम करनी चाहिए, क्योंकि एमएलए अगर इस वक्त यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, लेकिन कम से कम सरकार तो है, हमें कानून पे यकीन है। कानून किस हद तक महराज मलिक और कानून कहां तक अपनी लड़ाई लड़ते हैं, कहां तक वो उसको अंदर रखते हैं और कब उसको बाहर निकालते हैं, वो कानून जाने। लेकिन तब तक के लिए हम गुजारिश करते हैं कि पब्लिक को किसी भी तरीके से कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसलिए डीसी साहब को मैं बार बार डीसी साहब का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी इस वक्त डिपेंड है पूरे डिपार्टमेंट के ऊपर, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। अगर यहाँ पे सियासी रहनुमा को किसी तरीके से इन्होंने अंदर किया, लेकिन काम करने के लिए तो अब इन्होंने मैदान में आना है। और आपकी वसादत से मैं तमाम महकमा के मुलाजमीन को, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है, मैं गुजारिश करता हूं कि उनको आप बिल्कुल तनदही से काम लेना होगा और जल्द अज जल्द लोगों के मसले मसाइल हल करने होंगे। आप इसी तरीके से ये पेंशन होल्डर्स, बुजुर्ग लोग इस वक्त बैंकों में भी खड़े होते हैं, कईयों को वो पेंशन नहीं आती है, कईयों को बिजली बिल फंसे होते हैं, कईयों को पटवारियों के पास काम होता है, कईयों को थाने में काम होता है। तो मैं ओवरऑल तमाम एडमिनिस्ट्रेशन को, खास करके डीसी साहब और एसएसपी साहब को मैं गुजारिश करता हूं कि आपने अपने महकमा को, तमाम महकमों को ये हदायत जारी करें कि खास करके कॉन्स्टिट्यूंसी डोडा बुंजा के लोगों के मसले मसाइल जो हैं वो आपने बुनियादी हंगामों पे हल करने होंगे, ताकि लोगों को कोई मुश्किलात का सामना न करना पड़े। और मैं इस चीज पे इंशाल्लाह अभी पूरा मुतमईन हूँ। इसमें ये वो इलाका है जहां से ऑनरेबल गुलाम नबी आजाद साहब ताल्लुक रखते हैं, यहाँ के बड़े बड़े लीडर हैं। अभी हम इसलिए साइलेंट हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन काम करेगी, लेकिन आपकी वसादत से मैं पब्लिक के लिए भी एक मैसेज देना चाहता हूं कि आपको कोई भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम सब आपके बीच में बैठे हैं और एक जिम्मेदार तरीके से हम बैठे हैं। हम देख रहे हैं कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन या कोई महकमा किसी भी तरीके से कहीं भी लापरवाही करेगा तो हम कानून के थ्रू उनको सवाल पूछेंगे, जवाब पूछेंगे, और इंशाल्लाह हम डीसी साहब को दावत देंगे, जगह जगह हम कैंप करवाएंगे, जगह जगह उनको आना पड़ेगा और लोगों के मसले मसाइल जो हल करने होंगे। जब तक एमएलए या कोई ऐसा रिप्रेजेंटेटिव पब्लिक के बीच में आएगा तब आवाम के साथ है। मैं एक बार फिर आवाम को आपके माध्यम से गुजारिश करता हूं कि अगर कहीं भी किसी भी जगह पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर किसी भी आदमी को तकलीफ होगी, परेशानी होगी, कोई काम करने वाला मुलाजिम को तंग करता होगा, तो बमेहरबानी आप सिर्फ हुक्म करें, बताएं कहां पे क्या ज्यादती हो रही है। हम हुकाम बाला से और डीसी साहब से और गवर्नमेंट से लड़ झगड़ के लोगों के मसले मसाइल हल करेंगे। और आजाद साहब भी पूरी नजर बनाए रखे हुए हैं कि हमारे भलेसा में, हमारे डोडा में किस किस्म के हालात है, क्या होने जा रहा है। लिहाजा लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह
हम लोगों के साथ हैं, हमारी पार्टी, हमारा आज़ाद साहब जो साहब सब लोगों का लीडर है, वो भी नज़दीकी से नज़र बनाए रखे हुए हैं। लिहाजा मैं डीसी साहब से गुजारिश करना चाहता हूं कि हमारे लोगों को किसी भी किस्म की कोई मुश्किलात का सामना न करना पड़े। क्या जो बात करता है उसको जेल भेजते हैं, क्या ये सही है क्या या गलत है? देखिए, मैं कहता हूं कि मुझे अपने मुल्क के कानून पे इतना बड़ा फख्र है कि हमारे हिंदुस्तान का कानून जो है बहुत अच्छा है। कानून गवर्नमेंट मुलाजिम के लिए भी है, मिनिस्टरों के लिए भी है, एमएलए के लिए भी है, आम शहरियों के लिए भी है। जो लॉ का एहतराम करेगा, कानून का एहतराम करेगा, मुझे नहीं लगता कि उसके ऊपर ऐसे लगेगा। क्यों लगेगा? कैसे लगेगा? जबरदस्ती कोई किसी को थोड़ा लगाता है, या कोई भी केस कोई जबरदस्ती करेगा क्या? अगर कोई पुलिस वाला या कोई ऑफिसर या कोई जबरदस्ती किसी को बोलेगा आपको ये एक्ट लगेगा, क्यों लगेगा? अगर लगेगा तो उसको जवाब कोर्ट में देना होगा। ऐसा नहीं है। हमारा हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है और एक अच्छा मुल्क है, और हमारा आइन सबसे पहले, मैं कहता हूं पूरे हिंदुस्तान में अगर सबसे बड़ा कोई है वो हमारा कानून है, हमारा आइन है। और जो भी आइन का एहतराम करेगा, किसी की जरूरत नहीं है किसी को जबरदस्ती काम करने की, किसी की जरूरत नहीं है कोई किसी को जबरदस्ती इल्जाम लगाए। अगर कोई किसी को हरासमेंट करे उसके लिए भी केस है, कोई किसी को जबरदस्ती तंग करे उसके लिए भी कानून है, कोई किसी को जबरदस्ती, ये नहीं है ना कोई ऑफिसर, ना कोई मिनिस्टर, ना कोई रूलिंग पार्टी, ना कोई अपोजिशन पार्टी कोई किसी को जबरदस्ती, फिर तो जो बनता तो वो दूसरों को खत्म ही कर लेता। ऐसा नहीं है। कानून जो है वो बहुत अच्छा है, और कानून का एहतराम हर इंसान को करना चाहिए, और जिसने कानून को अपने हाथ में लिया वो उसका जिम्मेदार खुद है, चाहे वो ऑफिसर हो, चाहे वो सिविलियन हो, चाहे वो कोई हो। लेकिन जिसने कानून का एहतराम किया और कानून को लेके आगे बढ़ेगा, मैं कहता हूं उससे अच्छा ना कोई आदमी है, और ना हमारे मुल्क से अच्छा कोई दूसरा मुल्क है जहां कानून बहुत अच्छा है। हम कानून को इतना एहतराम से और इतने दिल से प्यार करते हैं कि हमारे हिंदुस्तान का कानून जो है वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मुश्ताक साहब मलिक, जो डीपीएपी के जिम्मेदार हैं। उन्होंने भी डीसी डोडा से गुजारिश की है कि जो बारिशों के दौरान काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ, उस नुकसान की भरपाई के लिए आप आगे आ जाएं, क्योंकि एमएलए की गैर मौजूदगी में आप अपना काम भी करें और जो उनका काम था वो भी निभाएं, क्योंकि एमएलए की गैर मौजूदगी में आप ही पूरे जिम्मेदार हैं। उन्होंने डीसी डोडा से गुजारिश की है कि आप ग्राउंड लेवल पर आकर आम लोगों की तमाम परेशानियों को हल करें। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।